Hello everyone, welcome to the Kumar Academy. I hope you all are fit and fine at your home in this tough time and are doing really well. So in today's video, we are going to discuss about class 9th Science NCERT chapter number 9, that is force and laws of motion. So for your kind information, I would like to tell you that we have uploaded 2 videos of the same chapter. So if you have not watched that video, please go to our channel, watch those videos. Part number 1, in that we have discussed the force and after that the effect of force. And in the video part number 2, we have discussed types of forces. Contact forces we have discussed, non-contact forces we have discussed, balanced force we have discussed, unbalanced forces we have discussed. So please watch all those videos before watching the third part. This is going to be a third part of the chapter number 9. So if you are not watching that previous part of the chapter, then nothing will be clear to you, because basic should be clear in your mind. Without understanding basic, you cannot understand any of the concept from in between. So without any further delay, let's get started at today's video. In today's video, we are going to discuss about Newton's laws of motion. This is very important if you are just studying about the second chapter of the physics, and according to the science NCERT, we are having the 9th chapter, right? So what is laws of motion? You must understand this is the very important part we are going to begin now. So you must just watch the lecture with the full concentration, otherwise you will miss a lot of things. So please watch the video with deep patience. ईच एंड एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर टू यू. सारा कुछ पढ़ेंगे हम अभी. ये जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से. सो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक. अगर कोई डाउट होता है तो फिर आप अपना डाउट्स कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं. वो एक डिस्कशन फोरम है, वहाँ पे आप आके अपनी क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हैं, राइट. तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ. फर्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, Newton's laws of motion. Do you know what is these laws of motion? So Newton forwarded 3 laws. Sir Isaac Newton, and the full name of Newton was Sir Isaac Newton. So Isaac Newton put forwarded 3 laws of motion. These were related to the motion of the object, motion of the body. So that's why they are called as laws of motion. All those laws, concept is related to the motion. That's why they are called as laws of motion. जो भी इन्होंने laws बताए थे वो मोशन को रिलेट कर रहे थे, मोशन के रिलेशन में थे. सो दैट्स वाई उनको हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं, राइट. सो यहाँ पे 3 लॉज दिए थे न्यूटन सर ने. फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ. जो फर्स्ट होता है उसको फर्स्ट लॉ बोला गया, सेकंड वाज कॉल्ड एज न्यूटन सेकंड लॉ, एंड थर्ड वाज कॉल्ड एज न्यूटन्स थर्ड लॉ. जो 3 लॉज थे स्टार्टिंग में, इनको तीनों को फर्स्ट को क्या बोलते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. जो सेकंड वाला लॉ था उसको बोला न्यूटन सेकंड लॉ, एंड थर्ड लॉ वाज कॉल्ड एज न्यूटन्स थर्ड लॉ. दिस ऑल 3 लॉज वर बेसिक and all those 3 laws were related to the motion of the object. तो जितने भी लॉज थे सारे मोशन से रिलेटेड थे. दैट्स वाई वी कॉल देम लॉज ऑफ मोशन. क्यों हम बोलते हैं उनको लॉज ऑफ मोशन? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की मोशन से रिलेटेड थे, उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन से रिलेट कर रहे थे. दैट्स वाई इनको बोला गया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. और किसने सजेस्ट किए थे, किसने फॉरवर्ड किए थे? न्यूटन सर ने इनको डिस्कवर किया था या इनको स्टेट किया था. दैट्स वाई इनको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. नाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है चेक कर लेते हैं. अभी ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ने वाले, अभी ये इंट्रोडक्शन है. अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ. सो फर्स्ट लॉ है, दिस गिव्स द आइडिया ऑफ इनर्शिया एंड द मोमेंटम. Just it is the introductory part of the syllabus only, that what is the first law, what is the second law, what is the third law. After that we will be dealing each and every law in detail. सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में. अभी ये जस्ट बता रहा हूँ कि क्या होता है फर्स्ट लॉ, और फर्स्ट लॉ की हेल्प से आप क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हो. फर्स्ट लॉ ने क्या कंक्लूड किया था, क्या क्या रिजल्ट थे फर्स्ट लॉ के. तो फर्स्ट लॉ है आपका, दिस गिव्स द आइडिया ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंटम. दैट मीन्स फर्स्ट लॉ में जो कॉन्सेप्ट था उसमें इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आया, और मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट था वो फाइंड आउट हुआ था. सेकेंड लॉ जब हमने स्टडी किया, व्हाट इज द सेकेंड लॉ? इट डिराइव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड एक्सेलरेशन. तो जो सेकेंड लॉ होता है वो फोर्स में और एक्सेलरेशन में आपको एक रिलेशनशिप प्रोवाइड कराएगा. तो उसको हम बोलते हैं फोर्स लॉ. वो आगे पढ़ेंगे कैसे फोर्स कैसे प्रोवाइड करता है, कैसे क्या रिलेशन होता है फोर्स में और एक्सेलरेशन में. दैट विल बी नेक्स्ट पार्ट. ओके. So now third is Newton's third law. Third law gives the idea of cause and effect.
that whenever we are applying a force on the object, then what will happen, what will be the effect of that force, that cause. ओके, जो भी हम कॉज प्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी के अंदर, उसकी वजह से कौन सा इफेक्ट जनरेट होगा, वो थर्ड लॉ था, राइट। तो ये 3 लॉज थे स्टार्टिंग में। कौन कौन से थे एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ जो था उसमें अभी न्यूटन सर ने क्या बोला था, कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कवर हुआ था, इट वाज जस्ट रिलेटेड टू, इट गिव्स द राइज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंटम। जब फर्स्ट लॉ स्टडी किया उसके बाद 2 कॉन्सेप्ट डिस्कवर हुए, न्यू कॉन्सेप्ट, एक इनर्शिया था और एक मोमेंटम। 2 नए कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट किया था न्यूटन सर ने फर्स्ट लॉ को यूज़ करके, राइट। अभी हम पढ़ने वाले नहीं है कि क्या है न्यूटन्स लॉ, अभी हम जस्ट बता रहे हैं कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या हुआ था। सेकेंड इज न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ में आपका फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशन होता है, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ जब स्टार्ट करेंगे हम। थर्ड लॉ क्या था, थर्ड लॉ था इट गिव्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, it gives the idea of cause and effect relationship. That means if you are applying force on the object, आप force create कर रहे हो, force apply कर रहे हो, तो वो क्या होता है, cause होता है, जिसकी वजह से बॉडी में कौन सा इफेक्ट होगा, हो सकता है मूव करना स्टार्ट कर दे, हो सकता है ना करे, तो जो इफेक्ट होगा वो उन दोनों में क्या रिलेशन होगा, कॉज और इफेक्ट में, राइट। तो ये 3 लॉज थे, अभी इनको नोट डाउन कर लीजिए। इतना ज़्यादा स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि फर्स्ट लॉ में क्या था, सेकंड लॉ में क्या था, थर्ड लॉ में क्या था। ये लॉज नहीं है, अभी मैंने आपको बताया ये लॉज नहीं है, लॉज हम पढ़ेंगे अभी। ये जस्ट इंट्रोडक्टरी पोर्शन है कि फर्स्ट लॉ में क्या डिस्कस किया गया था, सेकंड लॉ में क्या डिस्कस किया गया था, थर्ड लॉ में क्या डिस्कस किया गया था, राइट। सो दीज आर द इंट्रोडक्टरी पोर्शन ऑफ द न्यूटन्स लॉ। डोंट टेक इट that these are the laws, these are not the statements, these are only that what we have discussed in the Newton's law or what we can find out by using the Newton's law। क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ में, वो जस्ट इंट्रोडक्टरी पोर्शन था इसका, ओके। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं, जस्ट वेट, ओके। सो जो भी मेथड आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। Yes, I think you have taken the screenshot of the previous concept, that was the introductory portion of Newton's law. That means what are Newton's law, or there are how many Newton's law? There were 3 Newton's law: Newton's first law, Newton's second law, and Newton's third law. And what we are going to discuss in the Newton's first law, in the first law, we will find out the idea of inertia and the momentum. In second law, what we are going to discuss, in second law we are going to discuss the relationship between the force and the acceleration. And the third, we need to discuss the concept of force and the concept of cause and effect, right? Now we need to discuss the laws in detail. अभी हम पढ़ने वाले हैं कि न्यूटन्स लॉ होते क्या है एग्जैक्टली, क्या डेफिनेशन थी, क्या स्टेटमेंट था न्यूटन सर का फर्स्ट लॉ के रिलेटेड, ओके। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी लॉ इन डिटेल। उसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, सारा कुछ। तो परेशान होने की नीड नहीं है कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट लॉ। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ओके। सो प्लीज बी पेशेंस एंड जस्ट try to recall that statement. Newton sir said that if a body is in rest, then it will be in rest, and if it is moving, then it will continue its state of motion until and unless no external force is applied on it. What is the meaning of that? Just I am going to recall once again, okay. If a body is at rest, then it will be in rest. That means it will continue its state of rest, and if it is moving, then it will continue its state of motion. Then till when the question arises, till when they will continue their state of rest or their state of motion, till there is no, until and unless there is no external forces applied on that. मीन्स क्या है एक बार देख लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तब तक वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेगी। फॉर एग्जांपल, आपके सामने एक बुक है, टेबल पे एक बुक रखी हुई है। अगर आप
कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो, अब वो बुक ऐसे रखी रहेगी मॉर्निंग से इवनिंग तक, आप नेक्स्ट डे देखोगे तब भी वो वैसे रहेगी। दैट मीन्स वो बुक अपनी वो कैसी है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी। कब तक रहेगी रेस्ट में? जब तक कि आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तभी उसकी स्टेट चेंज होगी, अदरवाइज उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। इट विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। कब तक मेंटेन करेगी? जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो। सिंपली अगर कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है और कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है उस पर, तो वो क्या करेगा, अपनी स्टेट को कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। कब तक मूव करता रहेगा? जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा। जैसे ही कोई फोर्स आप लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। नॉर्मली आपको ऐसा कोई ऑब्जेक्ट देखने को मिलता नहीं है मूविंग कंडीशन में कि वो मूव करता रहे। नॉर्मली आपने सैटेलाइट्स देखी होंगी, आई थिंक नहीं देखी हैं तो आप जाके गूगल पे देख लीजिएगा सैटेलाइट्स कैसे मूव करती हैं। ऑल द सैटेलाइट्स दे आर फ्री टू मूव। वो क्या करती हैं, वो फ्रीली मूव करती रहती हैं। बहुत टाइम के बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है या कुछ ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से वो फॉल डाउन हो जाते हैं। नॉर्मली उन पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है, तो वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करती रहती हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पे, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो अपनी स्टेट को मेंटेन करेगा। ठीक है, जैसे आप साइकिल चलाते हो तो अगर आप साइकिल पे ब्रेक मत अप्लाई करो, ये फ्रिक्शन फोर्स ना हो रोड्स के बीच में, तो आपका जो साइकिल है वो कभी रुकेगी ही नहीं। बट होता है क्या है, हमारी जो साइकिल होती है उसके टायर के बीच में और रोड के बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। इसलिए आप साइकिल पेडल करना ऑफ भी कर देते हो, थोड़ी देर के बाद वो अपने आप ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाती है। आप फोर्स नहीं भी लगा रहे हो बट फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, स्टॉप हो जाता है। ओके, क्लियर हो गया? तो क्या स्टेटमेंट होता है फर्स्ट लॉ का? सिंपल है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर मूव कर रहा है कंटिन्यूसली तो मूव करता रहेगा। कब तक मूव करेगा, कब तक मेंटेन करेगा अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को? जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगा दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, एक बुक रखी है टेबल पे, और टेबल पे अगर आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो, आपकी कबर्ड में बुक रखी है, कहीं भी रखी है, तो वो रुकी हुई अगर स्टेशनरी है तो वो रेस्ट में ही रहेगी आपके, जब तक कि आप उसे वहाँ से शिफ्ट नहीं करोगे दूसरे प्लेसेस पे। तो वो स्टेशनरी है अगर कोई ऑब्जेक्ट तो वो स्टेशनरी ही रहेगा। कब तक स्टेशनरी रहेगा? जब तक कि कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। और अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर उसको कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जैसे मैंने एक साइकिल का एग्जांपल दिया आपको, अगर कोई बाइसाइकिल मूव कर रही है रोड पे, अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो और कोई भी एयर का फोर्स ना हो तो जो हमारी साइकिल है वो कभी रुकेगी नहीं। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में। ओके, सो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाता। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, दिस वॉज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ, और यू कैन से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्लियर हो गया क्या होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट? अभी देखते हैं नेक्स्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, नाउ व्हाई द ऑब्जेक्ट, साइंटिस्ट, यू नो द साइंटिस्ट आर वेरी क्रेजी एंड दे आर जस्ट थिंकिंग ईच एंड एवरी सिंगल थिंग अबाउट देयर एक्सपेरिमेंटेशन। नाउ they were wondering why there is the object maintains its state of rest, why it is not changing its position. Is there any property or is there anything because of that they are just maintaining their position of rest or their position of motion? So they just find a new idea and they give this concept, or this question give rise to the idea of inertia. उन्होंने क्या सोचा, स्टार्टिंग में जब न्यूटन सर ने ये स्टेटमेंट दिए उसके बाद बहुत न्यूटन ने सोचा कि यार क्यों नहीं मूव कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही क्यों है, वो अपनी पोजीशन को चेंज क्यों नहीं कर रहा है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है तो वो मूव ही क्यों करता रहेगा, ऐसा कोई क्यों मूव करता रहेगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की जो उस पोजीशन को या स्टेट को मेंटेन करती है। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया इनर्शिया। ठीक है, इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है, एक बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट हमारा अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करेगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को या अपनी स्टेट ऑफ मोशन को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। तो इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, वो फर्स्ट लॉ जब न्यूटन सर ने बताया था उसके बाद इनर्शिया का कॉन्सेप्ट डिस्कवर हुआ। बहुत सारे लोग आपको डायरेक्ट इनर्शिया पढ़ा देंगे फिर फर्स्ट लॉ पढ़ा देंगे। सो दिस इज नॉट जस्ट लाइक दैट, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, आइदर इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। बहुत सारे लोग इसको लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज दिस लॉ गिव्स द राइज टू द आइडिया ऑफ इनर्शिया। इसकी वजह से ही इनर्शिया की
डिस्कवरी हुई थी। अगर ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं होता तो शायद इनर्शिया कॉन्सेप्ट की रिसर्च भी नहीं होती, ना कोई डिस्कवरी होती, राइट। सो तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके वीडियो, या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं डायरेक्टली, फिर देखते हैं इनर्शिया क्या होता है। ओके okay, I think you have taken the screenshot of the previous concept, that was Newton's first law, and right now we need to discuss the next concept, that is inertia, and this is one of the important concept, and how this came about in the picture just because of Newton's law. If the Newton sir was just giving the first law, that time this concept of inertia was discovered, that why he thought that why the object are resisting, why the object is not changing their position, is there any property which is opposing the change in the state of rest और स्टेट ऑफ मोशन, कि क्यों ऐसा हुआ कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो रुका हुआ है, जिसकी वजह से वो अपोज करता है चेंज का, तो उस प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। देख लेते हैं क्या डेफिनेशन है। द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट मीन्स होता है अपोज करना, रेजिस्ट मीन्स टू अपोज, रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, दैट मीन्स the property of the object, let's recall once again, the property of the body due to which it resists any change in the state of rest or state of motion, that means ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो किसी वो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में कोई भी चेंज को अपोज करता है, जो भी चेंज होने वाला होगा उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। ओके क्या बोलते हैं, इनर्शिया। इवन इनर्शिया वर्ड का जो लैटिन मीनिंग होता है वो मीनिंग होता है अनचेंजिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इनर्शिया? इनर्शिया इज अ लैटिन वर्ड, इट्स नॉट अ इंडियन वर्ड। ओके सो द मीनिंग ऑफ द इनर्शिया इज अनचेंजिंग। आई एम राइटिंग ओवर हियर, इनर्शिया मीन्स, just wait, inertia means unchanging, just wait. Okay, so we can just underline the important things because this is given in the books, but mostly children are not trying to understand. Inertia means unchanging. So whenever there is an object, so it opposes any change in the state of rest or state of motion. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए क्या करता है, अपोज करता है, राइट। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो, जैसे आपने क्या किया, एक आपके पास वुडन ब्लॉक है, आप पुश करोगे तो स्टार्टिंग सडनली मूव करना स्टार्ट नहीं कर देगा, आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी तभी वो मूव करेगा। जैसे आप अगर नॉर्मली आपके पास क्या है, एक वुडन ब्लॉक है, ये टेबल है, आपने टेबल पे थोड़ा सा फोर्स लगाया तो वो नहीं मूव करेगा। क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्योंकि उसका जो इनर्शिया है, उसकी जो इंटरनल प्रॉपर्टी है वो अपोज कर रही है, आपकी फोर्स का क्या कर रही है, अपोज कर रही है, इसलिए आपका जो फोर्स है वो जीरो हो जाता है। फिर आप दोबारा से फोर्स लगाओगे थोड़ा सा ज़्यादा, हो सकता है तब भी मूव ना करे, पर एक लिमिटेड फोर्स के बाद जैसा ही आपका फोर्स इनर्शिया को ओवरकम करेगा, इनर्शिया से ज़्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स जब इनर्शिया अपोज करना बंद कर देगी तो उस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। एक कार है, आपने देखा जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मूव करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। क्यों? क्योंकि उनका इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है। जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आप बहुत ईजिली मूव कर लेते हो। ओके सो इनर्शिया इज क्लियर, इट्स द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेज एनी चेंज इन द, इट रेजिस्ट भी लिख सकते हो या अपोजेस भी लिख सकते हो, दोनों सेम है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप रेजिस्ट ही लिखो, आप अपोजेस भी लिख सकते हो। दैट इज वेरी इजी टू लर्न, you can create the own definition, there is no need to mug up this definition I am giving you, you can just create simply your own definition if you are getting the concept। अगर आपको समझ में आ जाता है कॉन्सेप्ट तो फिर आप अपने डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं, राइट। सो क्लियर, क्या होता है इनर्शिया? इनर्शिया बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में कोई भी चेंज को अपोज, किसी भी चेंज का अपोज करती है, ठीक है। अगर आप कोई भी अगर स्टेशनरी है ऑब्जेक्ट तो वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करेगी, अगर आप फोर्स लगाओगे भी तो वो उसका अपोज करेगी, बट एक लिमिटेड फोर्स के बाद एक लिमिट तक ही उसको अपोज करेगी। अब जैसे आप फोर्स इंक्रीज करते जाओगे तो एक टाइम पे आके वो मूव करना स्टार्ट कर देगी, दैट इज अ डिफरेंट केस। ओके सो दिस इज इनर्शिया। एंड नाउ इज देयर एनी फॉर्मूला टू मेजर द इनर्शिया? कोई फॉर्मूला है इनर्शिया का, कैसे मेजर करते हैं इनर्शिया को? I think you have seen whenever we are having two objects, I am giving you one activity to do it with me. You are having two objects, one is the small table, one is the lighter one is the heavier one। एक आपके पास बुक है, छोटी सी बुक है, लाइटर है, और एक आपके पास क्या है, टेबल है।
बुक कैसी होगी, लाइट होगी, एंड यू नो अबाउट देम। आप क्या करोगे, अगर बुक पे फोर्स लगा रहे हो तो बहुत कम फोर्स में मूव करना स्टार्ट कर देगी, है ना, बहुत कम रेजिस्टेंस होगा उसके अंदर। आप थोड़ा सा फोर्स लगाओगे, लेट सपोज 2 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तब भी मूव करना स्टार्ट कर देगी। बट अगर आप सेम अमाउंट ऑफ फोर्स टेबल पे लगा रहे हो तो टेबल मूव नहीं करेगी। दैट मीन्स इट हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस, उसके अंदर अपोज करने की टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब फिर और फोर्स लगाओगे, जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उतना ज़्यादा उस पर रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, उतना ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होता है। तो हैवियर बॉडीज़ को मूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लाइटर बॉडीज़ को मूव करना ईजी होता है, राइट। वाई इट इज़ सो, वाई इट इज़, बिकॉज वाई इट इज़ हैपनिंग, why the lighter bodies are able to move easily, why the heavier bodies we cannot move easily them, we cannot easily move to them, okay? क्यों हम उनको मूव नहीं कर पाते? क्योंकि जो लाइटर बॉडीज होती हैं उनका इनर्शिया बहुत कम होता है, उनमें जो अपोजिंग प्रॉपर्टी होती है बहुत कम होती है, तो आप सिंपली उसको फोर्स लगाओगे मूव करना स्टार्ट कर देगा। बट जो हैवियर बॉडीज होती हैं उनमें अपोज करने की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप जितना फोर्स लगाओगे अपोज करके उनको नेग्लेक्ट कर देगा। फिर आप फर्दर फोर्स लगाओगे, एक लिमिटिंग फोर्स के बाद वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? सो वी कैन से फ्रॉम दिस डेफिनेशन, जस्ट वी कैन से, we need to write something on the board, just wait. We can say larger is the mass, larger is the mass, larger the inertia, larger is the inertia, just wait, larger is the inertia, and smaller the mass, smaller the mass, smaller is the inertia, smaller is the inertia, smaller is the inertia. Okay, so what we have concluded from this activity that we have done, if we are having the lighter body then we will be able to move easily, if we are having the heavier body then we was not able to move that easily. हम दो ऑब्जेक्ट्स थे आपके पास, एक हैवी ऑब्जेक्ट था उसको आपने इजीली मूव कर लिया, हैवियर ऑब्जेक्ट्स को आपको मूव करने में डिफिकल्टी होती है। दैट मीन्स लाइट बॉडी में क्या होता है, लाइटर बॉडीज में लेस इनर्शिया होता है और लेस अपोजिंग प्रॉपर्टी होती है, और जो हैवियर बॉडीज होती हैं उनके अंदर ज़्यादा अपोजिंग प्रॉपर्टी होती है। सो हमने क्या कंक्लूड किया, वी कैन से दैट larger the mass, larger is the inertia, smaller the mass, smaller is the inertia. That means अगर मास ज़्यादा है बॉडीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसके अंदर अपोजिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, दैट मीन्स इनर्शिया ज़्यादा होगा। अगर उसका स्मॉलर मास है, लाइटर बॉडी है, दैट मीन्स द इनर्शिया विल बी स्मॉलर, कम इनर्शिया होगा, राइट। सो वी कैन से, we can write here mass of the body, mass of the body is the measure of inertia, is the measure of inertia. Okay, so this is the one of the important point, you can make a note of it. Okay, so how can we measure the inertia of the body? Just by calculating the mass. Okay, so how can we measure the inertia? Now the question was what measure of inertia. Inertia can be measured in terms of mass. We don't have any separate formula for the inertia. आपके पास inertia कैलकुलेट करने का कोई सेपरेट फॉर्मूला नहीं होता है, हम मास की टर्म्स में ही inertia को इवेलुएट करते हैं या फिर कैलिब्रेट करते हैं। मास ज़्यादा होगा तो फिर इनर्शिया ज़्यादा होगा, मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। इसलिए जो हैवियर बॉडीज़ होती हैं उनका इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है और उनको मूव करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, उनको ईजिली मूव नहीं कर सकते, बहुत टफ होता है उनको मूव करना। और लाइटर जो बॉडीज़ होती हैं उनको आप ईजिली मूव कर सकते हो, क्यों? क्योंकि जो उनका इनर्शिया होता है, जो अपोजिंग प्रॉपर्टी होती है वो बहुत कम होती है। क्लियर है? कैसे मेजर कर सकते हैं इनर्शिया को? मास के टर्म्स में। मास ऑफ द बॉडी इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया इज जस्ट इक्वल टू द मास। लाइटर इज द मास, लेसर इज द मास, लेसर विल बी इनर्शिया, लार्जर इज द मास, लार्जर विल बी द इनर्शिया। अगर ज़्यादा मास है, हैवियर बॉडी है तो ज़्यादा इनर्शिया होगा, लाइटर बॉडी है तो उसका इनर्शिया कम होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इनर्शिया कॉन्सेप्ट। प्लीज़
pause the video to make a note of it. Either you can take the screenshot, that will be helpful for you. So I think you have taken the screenshot. So this is all about your today's video. What we have discussed, let's recall once again. We have discussed the introductory part of the laws of motion. What are Newton's laws of motion? Newton has put forwarded 3 laws depending on the motion of the object. Then these laws are called as Newton's laws of motion, and there were 3 laws: Newton's first law, Newton's second law, and Newton's third law. In first law, what we need to discuss, in the first law, it gives the idea of inertia and the momentum. Inertia we have discussed, momentum is left now. It will be discussed after the second law. Okay. सो फर्स्ट लॉ में आपने क्या पढ़ना है? फर्स्ट लॉ में आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया, अभी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना था, स्टेटमेंट भी पढ़ा है हमने. फर्स्ट लॉ में आपको इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाएगा और मोमेंटम का. सेकेंड लॉ वाज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड एक्सेलरेशन. सेकेंड लॉ में आपको क्या पढ़ना था? रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड एक्सेलरेशन. वो अभी हम पढ़ेंगे. आज हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा है और कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है, राइट. सो थर्ड लॉ क्या था आपका? इट वॉज जस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट. इफ वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, देन व्हाट विल बी दैट इफेक्ट. इफ फोर्स क्या है? कॉज होता है, उसका इफेक्ट क्या होगा? दैट वी विल बी डीलिंग इन द थर्ड लॉ ऑफ द न्यूटन. सो राइट नाउ वी have not discussed second law and third law. We have discussed only the first law in detail and the concept of inertia in detail, that how the concept of inertia came about, how it was discovered, and how we can measure the inertia and what is exactly the inertia, right. So Newton's first law we have discussed. What was the statement? A statement what? If a body is at rest, then it will be in rest. If the body is in motion, then it will continue its motion unless we are not applying any external force on it. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा. अगर मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा. कब तक मूव करेगा? जब तक कि आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो. अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो तो वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करता रहेगा, चाहे वो रेस्ट की पोजीशन हो, चाहे वो मोशन की कंडीशन हो, राइट. और बहुत सारे साइंटिस्ट ने सोचा कि न्यूटन ने भी सोचा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर रहे हैं. अगर वो आप देख रहे हो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही क्यों है? दैट मीन्स कोई प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से वो रेस्ट में रुका हुआ है. कोई चेंज नहीं हो रहा है इसकी स्टेट में, ना तो स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो रही है, ना स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है. दैट मीन्स इट गिव्स दिस स्टेटमेंट गिव्स द राइज टू द आइडिया ऑफ इनर्शिया. फिर इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आया. इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया आई हैव टोल्ड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन. तो इनर्शिया क्या होता है? एक अपोजिंग प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट हमारा स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज में या कोई भी चेंज अपोज करता है. आप उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट भी चेंज नहीं कर सकते, अपोज करेगा, या स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज नहीं कर सकते, उसको भी अपोज करेगा, राइट. नेक्स्ट इज मेजर ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया को मेजर कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है. इनर्शिया को मेजर करने के लिए आपको मास पता होना चाहिए. वी डोंट हैव एनी डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ इनर्शिया, सो यू मस्ट बी हैविंग क्लियर आइडिया अबाउट द मास. इफ द मास इज more, then inertia will be more. If the mass is less, this inertia will be less. अगर heavier bodies हैं, ज़्यादा mass है तो inertia ज़्यादा होगा. अगर आपकी lighter bodies हैं तो inertia बहुत कम होगा, right. यही कारण है कि आप heavier bodies को move नहीं कर पाते हो, आपको problem होती है बहुत ज़्यादा, और lighter bodies को आप easily carry कर पाते हो. Okay, so this is all about your today's video. I think you have taken the screenshot. So this is all about. Thank you for watching this complete video, and if you like this video, then please hit the like button. If you are watching the video for very first time, then please subscribe to our channel and also press the bell icon and press all, so that whenever we are uploading a new video, you will get the notification for that. And I would like to request you, please share this video as much as possible, because we are trying to give free of cost education to all the students who are not able to afford this high fee education. Okay, so please share this video on WhatsApp group or at your Facebook wall, wherever you are connected with the social media platforms. Please share this video as much as possible, and thank you so much for watching this complete video. I know this is a lengthy video, 30 minutes staying on a channel is a tough time, but I just pay highly thanks to you, and thank you so much once again.